Hello guys, I am Hina Safdar and today I am going to present a topic with the guidance of Mr. Atif Iqbal. This topic is all about sales. Here we will discuss about the sales and how to become a good salesman. Here with a salesman, many people are attached directly. Accounts manager, product specialist, industry specialist and sales manager. These all are people who work with together. And with the specialist of top management and internal and external consultant. Sales is really a very hard work. Here you have to do many things on the same time. Our customer don't have any interest in our business. He just want a solution of his pain. For this purpose there is many people are involved. So salesmen have to deliver a value which can solve customers' pain. For this purpose always work with your team which will help you for delivering a good and a concise solution of that problem. For this purpose, your team should have to be prepared for the meeting. This meeting is a predefined and a good manners meeting which will discuss about the solution of the customer. It's not like this. You go on a cinema house and present your meeting to the customer. Before all this meeting, you should have to be prepared in a good way. For presenting a solution, your presentation should have to be as presentable as you can do. If your presentation really adapted the customer's need, it will become easy for you to sell your product to the customer. Good solution can just justify your business case in front of high management. Customer always judge solution with the make your solution as much expressive as you can. That will help you in providing a good solution. High management always like to the points and economic solutions of their problems. One thing more that is much important in sales. Not every sales opportunity is a right opportunity. Many of them are just time wasting things. So you should have to focus on the right time on the right thing while delivering the right product to your customer, which will fulfill your customer's need. Sales saying no is better than wasting your time. Your resources are much important for you and your company. Your bosses really like hard work but don't accept the time wastage things. If any salesman is working hard and have a clear picture of his targets of 5 quarters in future, so it's really a very good thing of a salesman. Every salesman should have to make good relationship with other key decision makers, which will help him in taking a good decision on a time. In every field, supporting people always became your strength. Here in sales, there is another very interesting thing, that's analyzing the lost deal. Every salesman take it as a time wasting thing, but it's a very helpful for the future. In this way, you know about your mistakes and you know how to deal with all these mistakes and how to do work more efficiently and make more profitable deals. It also helps you for the next time how to avoid it and here how can you deal with all these mistakes. If we talk about the experiences in this way, it's a very good thing. Here you can analyze yourself and know about your strengths and weaknesses. You will be able to convert your weaknesses into your strengths. It's really a very good thing in sales. Now here is another a more interesting thing, that's a sales team. Sales team every time give you suggestions about anything with their past experiences, but you have to be very wise in taking your decision. In sales, decisions matter a lot. You should have to take your decision by on yourself while helping your customers and making proud to your boss as well as giving profit to your company. Sales is really a very good thing which make your connections with other people and your life will become easy after this. Let's watch a very interesting video for your knowledge in sales. मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि हम सब यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं हम सब की जीत की सेलिब्रेशन करने के लिए। लास्ट ईयर कंपनी ने जो गोल लिया था उसे अचीव किया है, तो हम चाहते हैं कि जो आदमी अच्छा किया है लास्ट ईयर में उसको अवार्ड दिया जाए।
दोस्तों पता है इस साल का सेल्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड किसको जाता है? एनीबडी, एनी गेस? सेल्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड जाता है कदम को। कदम, वेल डन, कीप इट अप। मुझे अवार्ड कब मिलेगा? मैं भी तो 10 साल से काम कर रहा हूँ। क्या सोच रहा है भाई? कुछ नहीं यार। बोलना। यार कदम, तू ऐसा क्या काम करता है कि हर साल अवार्ड तुझे मिलता है? हाँ? मैं वही करता हूँ जो मार्केट में काम तू करता है। तो फिर अवार्ड मुझे क्यों नहीं मिलता? अच्छा तू ये बता कि तू मार्केट में क्या करता है? क्यों छोटे, हो गया लोड? अरे जल्दी करना, टाइम है मेरे पास, बहुत काम है। चल चल बंद कर, चल आजा, गाड़ी में बैठ जा, गाड़ी में। कांति भाई नमस्कार। अरे नमस्कार। आज क्या माल डाल दूं? क्या चाहिए जल्दी बोलो। अरे रुक जा राजू, रुक जा, कोई कस्टमर तो देख लूं। अरे कांति भाई टाइम नहीं मेरे पास, कुछ लेना है तो बोलो, नहीं तो कल आता हूँ, बहुत काम है आगे। अरे यार एक तो 4 दिन बाद आया है, रुक जा 1 मिनट। अरे छोटू देख जरा क्या माल लेना है। हाँ सर। आधे का 5, 1 का 4 और पाव का 3 दे दो। लक्ष्मण चल फटाफट माल डाल दे, और ये बिल भी कांति भाई को दे दे। और सुनना, ये टेंगला के पोस्टर रखे हैं ना, ये भी दे दे उनको। ए कांति भाई सुनो ना। हाँ ये कंपनी ने एक नया ड्रिंक लॉन्च किया है, बोलो तो रखवा देता हूँ, देख लो बिकता है तो। हाँ डाल दो थोड़ा बहुत। बाकी लिफलेट जो भी है प्रोडक्ट के बारे में पता कर लेना पढ़ के। ठीक है ठीक है। और लक्ष्मण डाल दे वो भी। अरे राजू तू ऐसे काम करेगा तो अवार्ड तो तेरा कस्टमर भी टूट जाएगा। क्या बात कर रहे हो यार? तो फिर मैं क्या करूँ? अच्छा ये बता कि तू काम कैसे करता है? कुछ बताना मुझे प्लीज। चल मैं तुझे कदम के 8 कदम बताता हूँ। पहला कदम है प्री सेल्स चेक। पहले अगले दिन का सेल्स प्लान बना दो, किसी ग्राहक की एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट हो तो वो चेक कर लो। फिर सुबह मार्केट निकलने से पहले स्टॉक लो और बिल्स को चेक कर लो। हाँ भाई लोड हो गया क्या? हाँ 5 लीटर के 10 जार रखे क्या? वेरी गुड। 1 लीटर के 15, 250 वाला भी रखा ना? ठीक है चलो। अगला कदम है हमेशा अपने ग्राहक के साथ आदर से बात करें। हमेशा अपने ग्राहक को सम्मान या अदब के साथ हेलो या नमस्कार कहकर ही उनका अभिवादन करें। अगर ग्राहक किसी कस्टमर के साथ बिजी हो तो थोड़ा इंतज़ार करें, जब वो फ्री हो जाए तो फिर उन्हें उनका नाम लेकर ही संबोधित करें। नमस्ते कांति भाई, कैसे हैं आप? अरे कदम जी मैं बढ़िया हूँ, आप बताओ कैसे हो? मैं एकदम ठीक हूँ जी, आप बताइए घर में सब कैसा? सब बढ़िया। अरे आप परफेक्ट 11 बजे टाइम पे आ जाते हो ना, बस बहुत बढ़िया। बैठी बैठी चाय मंगाता हूँ। तीसरा कदम है स्टॉक चेक और ग्रोथ मैपिंग। एक काम करते हैं, जब तक चाय आती है मैं आपका स्टॉक चेक कर लेता हूँ। ठीक ठीक। अरे छोटू बेटा 2 चाय बोल। सेठ जी आपका 2 लीटर और 1 लीटर का स्टॉक खत्म है, तो आपको मैं 2 लीटर के 5 और 1 लीटर के 10 के दे दूँ। अरे कदम जी आपको मेरी दुकान के बारे में अच्छे से मालूम है, मुझसे ज़्यादा मालूम है कि क्या बिकता है। अरे ये तो मेरा काम है कि मैं आपकी सेल का ध्यान रखूँ। वैसे आपके यहाँ 250 ml भी बिक सकता है। नहीं कदम जी 250 ml नहीं बिकेगा। सेठ जी मैं 250 ml डिस्प्ले में लगाता हूँ, देखिए ज़रूर बिकेगा। छोटी प्याज के लिए 250 ml बिस्लेरी। चलो दे दो, 4 केस दे दो इसके भी। ऐसे सेठ जी देखते देखते आपकी बाजू वाली बिल्डिंग भी बन गई, आपका धंधा बढ़ गया होगा। अरे बढ़ गया थोड़ा बहुत, कॉलेज के स्टूडेंट हैं
और पीजीज हैं। अरे तो फिर आपको 5 लीटर भी रखना चाहिए। कॉलेज स्टूडेंट्स और पीजीज के लिए परफेक्ट पैक है। 5 लीटर का दे दो, 5000 दे दो इसका। सेठ जी, हमारी कंपनी ने ये नया ड्रिंक लॉन्च किया है, ऊर्जा। कैन और पेट बॉटल में। ऊर्जा जी, जबरदस्त टेस्ट वाला नया ड्रिंक। दिमाग और बॉडी को तुरंत रिचार्ज करता है, सबके लिए, कभी भी, कहीं भी। ये एक बहुत खूबसूरत पैकिंग में आता है, कैन में भी और पेट बॉटल में भी। कैन 250 ml का है और पेट 300 ml का है। एक केस में 24 कैन और पेट आते हैं। कीमत क्या है इसकी? कैन और पेट की कीमत है 50 रुपये। अच्छा, ये एनर्जी ड्रिंक है क्या? ये एक बेहतरीन टेस्ट वाला प्रीमियम ड्रिंक है जो आपको एनर्जी भी देता है। अच्छा, इसके फायदे क्या हैं? सर, ये आपकी बॉडी को रिचार्ज करता है, रिफ्रेश करता है, आपके दिमाग और आपकी बॉडी को तरोताज़ा करता है। इसके विटामिन्स आपकी बॉडी को एनर्जी देते हैं और इसमें बाकी एनर्जी ड्रिंक्स की तरह कैफीन नहीं है, बल्कि ये एकदम नेचुरल पदार्थों से बना हुआ है। वाह, अच्छा है। तो सेठ जी, ऊर्जा के भी 2 केस रखवा देता हूँ। ठीक है। अगला कदम है प्रेजेंटेशन। इस कदम में आप अपने आप को अपने ग्राहक के सामने किस तरह प्रेजेंट करते हैं, ये बहुत ज़रूरी है। अपनी सेल्स हॉल पे निकलने से पहले इस कदम के 4 पॉइंट्स हमेशा ध्यान में रखें, जैसे कि आप अपनी ग्रूमिंग कैसे करते हैं, साफ सुथरा क्लीन शेवन रहना, साफ सुथरी यूनिफॉर्म पहनना, एक्सेट्रा। दूसरी चीज़, आप पहले 20 कदम कितने आत्मविश्वास के साथ चलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। दूसरी चीज़ ये है कि आप कैसे पहले 20 शब्द विनम्रता के साथ अपने ग्राहक से कहते हैं। और फिर चौथा ये कि कैसे आत्मविश्वास और अपने हाव भाव के साथ आप ग्राहक को इम्प्रेस करते हैं। इन सब चीज़ों का ध्यान रखोगे तो ग्राहक हमेशा आपको इम्पोर्टेंस और इज्जत देगा। 5वां कदम है डिटरमाइन दी ऑर्डर। छठवां कदम है मर्चेंडाइजिंग। राजू, इस बात का हमेशा ध्यान रखो कि पीओपी आप खुद लगाओ, क्योंकि जो दिखता है वही बिकता है। सेठ जी, वो डीलर बोर्ड के लिए मार्केटिंग टीम को बोल दो। ठीक है, लगवा जरूर देना। लेकिन अब तुम्हारा काम है कि तुम सारे माल को खोल के उसमें से कैन और पेट बॉटल्स को दुकान में ऐसी जगह लगा दो ताकि कस्टमर को दुकान में आते ही उसकी नज़र सबसे पहले हमारे प्रोडक्ट पर पड़े। और फिर बाकी के माल को किसी विजिकूलर या शेल्फ में ऐसी जगह लगाओ जो आई लेवल पे, क्योंकि आई लेवल ही बाई लेवल होता है। अगर तुम अपने प्रोडक्ट्स को इतने प्यार और गर्व के साथ रखोगे तो इसका ग्राहक के दिल पे ज़रूर असर पड़ेगा। इतना ही नहीं, उसके दिल में तुम्हारी और तुम्हारी कंपनी के लिए इज्जत कई गुना बढ़ जाएगी। अच्छा सेठ जी, इस पीओपी को ठीक से डिस्प्ले में रखिए, इससे प्रोडक्ट का मूवमेंट अच्छा होता है। सेठ जी, मैं तो आपकी दुकान में 10 मिनट के लिए आता हूँ, लेकिन ये पीओपी एक साइलेंट सेल्समैन की तरह काम करता है। अच्छी विजिबिलिटी होने से आपका और आपके ग्राहक का काम आसान हो जाएगा। और वैसे भी माल बेचने के लिए आपको एक 24 घंटे का सेल्समैन मिल जाता है। सही बात। 7वां कदम है कर्ब साइड डीब्रीफ। ठीक है सेठ जी, तो मैं चलता हूँ। अगले बुधवार को 11 बजे आऊँगा। ठीक। ओके, थैंक यू। 8वां कदम है रिकॉर्ड्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन, यहाँ पे क्या आप अपने दिन भर का हिसाब लेते हैं। तो ये है कदम के 8 कदम, समझे भैया? ठीक है, अब अगली बार से मैं भी इन्हीं कदमों को फॉलो करते हुए काम करूंगा। अपनी कॉल पे निकलने से पहले इन खास बातों का अवश्य ध्यान रखें। हमेशा साफ सुथरे कपड़े पहनें, हमेशा क्लीन शेव करके कॉल पे जाएं, ग्राहक से हमेशा मुस्कुराते हुए अभिवादन करें, रिटेलर को हमेशा उसके नाम से ही संबोधित करें, हमेशा दुकान में रखे हुए स्टॉक को चेक करें, बुकिंग से पहले ऑर्डर को कंफर्म करें, अगली मीटिंग कंफर्म करके ही कॉल को समाप्त करें। Here I am going to discuss about the sales process. This is very interesting things in sales to know about the sales process. Sales process contain different
Steps that are helpful in dealing with customer and doing a good sales. Salesmen have to deal with different kind of customers, but the steps are really same in every customer deal. First of all, initial meeting in which you will discuss about the customer needs. After that, qualification, knowing about the customer need, and after that, understanding customer needs, what you should have to really propose your customer. After that, value proposition, in which cost you will provide with your service and product. After that, you will propose a proposal to your customer. That's really a price and the value which you are going to deliver to your customer. After that, this deal is closed and you have your money and customer have the solution of his problem. This video is all about sales. I hope you have now the answers of many queries that you have. See you guys next time with more informative videos. Stay safe. Do like and subscribe my channel. Thank you.